Hello everyone, here is Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to talk about the operations related to matrices. And basically we will start with equality of a matrix, and then we will talk about addition and multiplication and the properties of addition and multiplication. Alright, so definitely in this part this will become a very important, or you can say this lecture will be the backbone of the entire linear algebra chapter, because in this chapter only we'll be talking about few things which will be required in further operations or further knowledge about the matrices. All right, let us talk about equality of a matrix. First of all, यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि when we are going to talk about the equality, because since we are comparing one matrix with other, whether a matrix A is equal to matrix B or not. So let us take two matrices, matrix A, which is given as Aij and m into n, where m into n is the order of the matrix. All right, and let us consider another matrix B, which is represented by Bij, where Bij will form the elements, and here it is x by y, x into y. Here the order is m into n, here the order is x into y. Is it clear? And here the elements are represented by Aij, and here the elements are represented by Bij. Both of them are different matrices, but in order that both of the matrices be equal to each other, like for the matrix A to be equal to matrix B, दो पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए. पहला तो है ना, जो ऑर्डर है, यानी कि m इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू x इंटू वाई. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से m मस्ट बी इक्वल टू x एंड n मस्ट बी इक्वल टू y. यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है. एंड दूसरा बात यह है कि एलिमेंट्स दोनों का Aij must be equal to Bij. It means the elements should also be same. Elements should also be same in both the matrices, isn't it? तो दोनों का एलिमेंट सेम होगा और ऑर्डर भी सेम होगा. डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर व्हाट इक्वल मैट्रिसेस. ठीक है. तो दिस आर द टू क्राइटेरियाज डिपेंडिंग अपॉन विच will give you the value or give you an idea whether the matrix can be compared or not, and even if they will be comparable, whether they are equal or not. All right, let us now talk about addition of two matrices. Again we shall take two matrices now. तो यहाँ पे when we are talking about addition, है ना, whenever we are talking about addition here, it is not necessary that the matrices should be square. This can be rectangular matrices also. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ can be rectangular matrices, can be rectangular matrices. क्लियर है. सो ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस मिल रहा है, इसका एडिशन करने के लिए क्या करना होगा, लेट अस सी. तो लेट अस टेक टू मैट्रिसेस ए एंड बी. ठीक है, तो टू मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग. ए एंड बी, एंड इफ दे कैन बी एडेड और नॉट, क्या जिस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड कब एडेड होगा. सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट ये है कि दे कैन बी एडेड इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी. ठीक है, बोथ हैव द सेम ऑर्डर. कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर. यानी कि m इंटू एन है या इसका x इंटू वाई है, बोथ ऑफ देम शुड हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, इज इट क्लियर. अगर ऐसा होता है, दोनों का सेम ऑर्डर होता है, दिस इज द ओनली important and necessary condition, sufficient condition and necessary condition in order that the two matrices can be added. All right, so definitely this two can be added. And क्या होगा when we are going for the matrix addition a plus b, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, तब क्या होगा. in this case जितने भी matrices के elements aij plus bij, और दोनों का अगर डेफिनेटली ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर को मैंने मान लिया है m by n. So definitely it can be m by n. It will give the same values. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2
1 3 5 and another one I am taking as b is equal to 7 8 1 2. ठीक है, तो a प्लस बी अभी करने वाले। तो a प्लस बी, पहला बात तो यहाँ देख लो ऑर्डर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है। ठीक है, सो a प्लस बी अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है बस, 2 को 7 से, है ना, एंड देन 1 को 8 से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए आई जे प्लस बी आई जे, सिंपल। तो a11 प्लस b11, a12 प्लस b12 ऐसे करेंगे, है ना, क्लियर है। 3 को अब 1 से, 5 को 2 से, सिंपल। सो इन दिस केस वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 3 प्लस 1 विल बी 4 एंड 5 प्लस 2 विल बी 7। ठीक है, इज देयर एनी डाउट। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट ये होता है, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट exactly like characteristics of addition. So one is commutative. ठीक है, तो पहला मैं देखता हूँ कि a प्लस बी अगर कर सकते हैं, if a प्लस बी कैन बी डन then b प्लस a can also be done. तो this is your known as commutative. ठीक है, आप a से b जा रहे हो, b से b a आ जा रहे हो आसानी से, so that is known as commutative. Alright, then we have associative. a प्लस b को ऐड करने के बाद उसमें c ऐड कर रहे हैं, देन वी कैन ऐड a लेटर एंड b कैन एसोसिएट विथ c. तो पहले b was associated was with a, now b is associated with c. This kind of property is known as associative property. क्लियर है। एंड देयर आर कैंसिलेशन लॉज, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर ऐसा कर सकते हैं देन डेफिनेटली दिस विल लीड टू b प्लस सी, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी। ये सिर्फ आपका कैंसिलेशन लॉ सिर्फ यहाँ ही वैलिड है, ओनली इन एडिशन, b इज इक्वल टू सी। तो दिस इज योर कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये सिर्फ एडिशन में पॉसिबल है, आप मल्टीप्लिकेशन में गलती से भी मत कर देना। ठीक है, सो दिस थ्री आर द इंपॉर्टेंट characteristic of addition of a matrix. It can be commutative, a को b से करो या b को a से करो, commute कर सकते हैं। when b is associated with a then b can also be associated with c, ऐसे करके, provided all a b and c are of the same order. पहले ऑर्डर चेक कीजिए तब एडिशन कीजिए। if the orders are different in the matrices then definitely your means what, you will not be able to do the addition of the matrix. All right, you cannot carry out the operation. Now let us talk about the थर्ड ऑपरेशन, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दूसरे कलर से यहाँ पे लिख दिया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट किस हिसाब से वो देखते हैं। तो यहाँ पे लेट अस सपोज, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू मैट्रिसेस, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट, विल कंसिडर टू मैट्रिसेस, कंसिडरिंग मैट्रिक्स ए which is represented as usual aij m into n. ठीक है, and another one we have b is equal to bij m into n. clear है, sorry, it is x into y, not m into n. this is x into y, both of them are of the different orders. मान लिया नॉट स्क्वायर, नॉट नेसेसरीली स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नॉट नेसेसरीली स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दोनों तभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नाउ इसको इन ऑर्डर दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, फॉर ए इंटू बी टू बी पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, ये ध्यान देना है आपको। व्हेन फॉर ए इंटू बी टू बी पॉसिबल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन प्री मल्टीप्लायर, सॉरी यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूं, इन प्री मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन से पहले वाला जो मैट्रिक्स है, तो प्री मल्टीप्लायर इन दिस केस इट इज ए, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ columns
in pre-multiplier, that is A, must be equal to, it must be equal to number of rows in post multiplier. क्या है पोस्ट मल्टीप्लायर? here the post multiplier का मतलब हो गया the matrix that is after the multiplication sign, that is B. It means that n should be equal to x, n should be equal to x. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, फॉर a इंटू बी कर रहे थे टू बी पॉसिबल, और अगर अनदर थिंग फॉर b इंटू ए करना है तो फॉर b इंटू ए टू बी पॉसिबल क्या होना चाहिए, सेम चीज लगाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर. नाउ इन प्री मल्टीप्लायर विल बिकम b एंड पोस्ट मल्टीप्लायर विल बिकम a. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि b का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, b का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है y, एंड देन a का नंबर ऑफ रोज क्या है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग b इंटू a, सो b का नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज y मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन a, मतलब y मस्ट बी इक्वल टू m. क्लियर है? अब मल्टीप्लीकेशन होता कैसे ये भी देख लो. ठीक है, तो हम लोग दो इक्वेशन ले लेते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं आराम से. फर्स्ट पहला तो सिंपल वाला देखते हैं. ठीक है, तो वी हैव 1 2 3 4, ऑलराइट, एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग विथ b. तो b इज हाउ मच, 4 3 2 1, ऐसे कर लिया मैंने. ठीक है, तो अब हम लोग को a इंटू बी करना है. क्लियर है? सो a इंटू बी करना है. तब कैसे किया जाता है ये देख लो. तो यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/2 है, तो हम लोग को भी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी 2/2 ही मिलेगा. ठीक है, क्लियर? तो इसमें मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंस वी आर टॉकिंग प्री मल्टीप्लायर, अभी हम लोग a क्रॉस b कर रहे हैं, तो प्री मल्टीप्लायर इज विच वन, a इज द प्री, इट इज द पोस्ट, b इज द पोस्ट. तो हम लोग को नंबर ऑफ कॉलम्स इन a मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन b. तो पहले हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे से जाएंगे. ठीक है, तो कॉलम्स इन a मस्ट बी इक्वल टू रोज इन b. तो क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से, यहाँ फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से. ठीक है, प्लस दिस विल बी प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 होगा. कैसे, प्लस 2 इंटू 2 होगा. तो 1 दिस इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2. क्लियर? तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 कितना है, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 प्लस 4 इज हाउ मच, 8. नाउ अगेन 1 इंटू 3, तो पहला कॉलम को 1 इंटू 3, अब दूसरा कॉलम में जा रहे हैं. ठीक है, सो 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1. ठीक है, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3, अब यहां से दूसरा बार में जा रहे हैं, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहां से हॉरिजॉन्टल, यहां से वर्टिकल, ऐसे. तो हम लोग पहले वाले को खत्म करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों से. तो यहाँ पे 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 इज 1, तो 3 प्लस 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो 1 प्लस 3, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो 3 प्लस 2 इज हाउ मच, 5. नाउ अगेन वी विल गो फॉर दिस वन. अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में आ गए, तो सेकंड वाले को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ विल गो टू द सेकंड रो. तो सेकंड रो में हम लोग पहला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, पहले वाले से, एंड देन प्लस 4 इंटू सेकेंड वाले से, है ना. तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, 12, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 जा रहा है, प्लस क्या होगा, 4 इंटू 2, ऐसे जाएगा. तो 3 इंटू 4 कितना, 12, 12 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 12 प्लस 8 इज हाउ मच, 20. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना, 3 इंटू फिर से ये वाले को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 4 इंटू 1 इज 4, तो 9 प्लस 4 इज 13. मल्टीप्लीकेशन ऐसे किया जाता है. ऑलराइट, क्लियर है?
तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार कि ये मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया जो, ठीक है, उसको और एक, ये तो हम लोगों ने 2 by 2 दिया, तो डेफिनेटली आवर रिजल्ट वाज अगेन ऑफ द मैट्रिक्स, द मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स वाज ऑफ द ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को देखना है एक चीज, अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस मैट्रिक्स ए टू बी सेम एज बिफोर 1 2 3 4, और बी में ले लिया हम लोगों ने क्या 4 और 2, तो देखो तो ए और बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, ध्यान से देखना, तो ए इंटू बी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है 2 by 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए प्री मल्टीप्लायर मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन, नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 रो है लेकिन सिंगल कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स है, बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। So the number of columns in A pre-multiplier must be equal to the number of rows in the post-multiplier. इसका second part, इसका second number must be equal to the first number of the post-multiplier. Simple. तो हाँ ये दोनों equal है, तब तो हो जाएगा, no problem. A into B possible है, तो A into B कैसे करेंगे, अब देखो 1 into 4 plus 2 into 2, ऐसे होगा, क्लियर है। तो 1 into 4 इज हाउ मच 4 प्लस 2 into 2 इज हाउ मच 4, तो हम लोग को 8 मिलेगा। तो हम लोग दूसरे एक पे जा सकते हैं, इज देयर एनी अदर एलिमेंट्स, आर देयर एनी अदर कॉलम्स, नो नहीं है, लेकिन अब हम लोग इसमें जा सकते हैं, वी कैन मूव ऑन टू दिस। तो इसको हम लोग क्या लेंगे 3 और 4 को लेंगे, तो 3 into 4 प्लस 4 into 2 ऐसे करेंगे, तो 3 into 4 इज 12 प्लस 4 into 2 इज हाउ मच 8, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 20। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को जो रिजल्ट जो मिला, हम लोग को मल्टीप्लीकेशन के बाद का जो रिजल्ट मिला, दैट इज ऑफ द ऑर्डर कितना, दैट इज 2 by 1, है ना। तो क्या करना होता है, जब भी हम लोग को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 2 by 2 को मल्टीप्लाई 2 by 1 से हो सकता है, तो यू जस्ट चेक ये और ये हाँ सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये दोनों को काट दो, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा ना, दैट इज 2 into 1 मिल रहा है आपको, विच इज द ऑर्डर है सेम। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 3 by 4 दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाइड विथ बी 4 into 2 ऐसे दिया हुआ है, तो पूछेगा कि क्या ये पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ दिस इज पॉसिबल, यू कैन गिव अ ग्रीन सिग्नल टू इट कि ये पॉसिबल है। वाई, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मल्टीप्लायर, ये क्लियर है। फिर इसका ऑर्डर क्या होगा आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो ये 4 और 4 को कैंसिल कर दो, बचा हुआ जो रहेगा दैट इज 3 into 2 आपको मिलेगा ऑर्डर। क्लियर है, इज देयर एनी डाउट। तो अब यहां से ध्यान से देखो, ये b इंटू ए पॉसिबल होगा क्या, ये b इंटू ए को करके देखो तो b हम लोग के पास है 4 by 2, है ना, वी आर मल्टीप्लाइंग विथ व्हाट 1 2 3 4, तो ये तो आपका 2 by 1 है और ये आपका 2 by 2, तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, नहीं है ना, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे ये है कि दो मैट्रिक्स अगर ए और बी, टू मैट्रिसेस, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो इफ ए इज क्रॉस बी इज पॉसिबल, ठीक है, देन बी क्रॉस ए जो होगा नॉट नेसेसरीली पॉसिबल, नॉट नेसेसरीली पॉसिबल, क्योंकि वी आर नॉट ऑलवेज डीलिंग विद स्क्वायर मैट्रिक्स हियर, हम लोग को अलग अलग मैट्रिक्स भी मिल सकता है। सो ए इंटू बी अगर पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया, तो हम लोग को ए इंटू बी पॉसिबल मिला, बट बी इंटू ए इफ यू आर गोइंग टू डू इट, इट वॉज नॉट पॉसिबल। देखो कैसे कर सकोगे, 4 into 1, ठीक है, फिर आपके पास दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं इसको साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, यू कांट,
आपको ऐसे और ऐसे जाना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 1 तो है, बट इज देयर एनी अदर एलिमेंट दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 3? नो, सो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज जो आज यहाँ पे इसके बारे में जान लो, ट्रांसपोज होता क्या है, एंड फ्यू मोर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स विल टॉक अबाउट इट इन द कमिंग लेक्चर। तो अभी ट्रांसपोज के बाद पढ़ के दिस लेक्चर विल बी एनफ फॉर टुडे। मैं आपको थोड़े थोड़े टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ सो दैट यू डू नॉट गेट बोर्ड आउट ऑफ इट एंड यू डू नॉट लूज द ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। तो थोड़ा थोड़ा में जानो, लेकिन अच्छे से जानो। दिस इज व्हाट आवर एम इज टू। ऑलराइट, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए। तो उसका ट्रांसपोज को हम लोग डिफाइन करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं, वी रेफर दैट ट्रांसपोज एज ए टू द पावर टी, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ए टी इज योर ट्रांसपोज। इज देयर एनी डाउट? तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोज? सो द मैट्रिक्स आफ्टर एक्सचेंजिंग और इंटरचेंजिंग, क्या करते हैं हम लोग? इंटरचेंजिंग द मैट्रिक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो अगर हम लोग रोज को कॉलम बना दें और कॉलम जो है वो अपने आप रो बन जाएगा, तो रोज को अगर हम लोग कॉलम बना दें वो अपने आप क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया, रो बिकम्स कॉलम। सो द मैट्रिक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स जो बनता है, दैट बिकम्स द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इफ योर गिवन मैट्रिक्स ए is given as something like this, 3 by 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 5 and then we have 3 9 8, alright, and 7 6 4। ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा वो बता। तो ए ट्रांसपोज क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जानना इसलिए जरूरी है ट्रांसपोज एंड ऑल, बिकॉज इन द कमिंग पार्ट द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया है इनवर्स निकालने के लिए, वहां पे ट्रांसपोज, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये वो सब जानना जरूरी है। सो हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे, एंड सो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन वी विल टारगेट देम एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली। सो ए ट्रांसपोज क्या है, ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ के जो यहाँ का जो कॉलम है उसको रो बना देंगे बस, या रो जो है पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, इंटरचेंज कर रहे हैं बस। तो पहला रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, यू ब्रिंग दिस रो, इसको घुमा के आप पहला रो कॉलम बना दो। ठीक है, तो जैसे 1 2 5 ऐसे दिख रहा है आपको, वैसे ही 1 2 5 ऐसे दिखेगा। सो हियर वी हैव 1 2 5। तो फिर सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना दो, देन सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम, तो 3 9 8। क्लियर, 3 9 8, 3 9 8 आपका सेकेंड कॉलम बन गया। ठीक है, एंड देन 7 6 4, द थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, देन 7 6 4। So this is known as the transpose of a matrix. The matrix is said to be transposed. Clear है? तो यहाँ पे कुछ कुछ आपका यहाँ पे there are characteristics और there are properties of transpose of a matrix. आप A ट्रांसपोज, कोई एक मैट्रिक्स A लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे, इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, फिर से जो रो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ का जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, या फिर जो यहाँ पे जो रो दिख रहा है आपको वो कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो if you are going to transpose it again, then this 137 again it will form like 137 like this, पहले जैसा। so transpose का फिर से ट्रांसपोज करने से we will get the same original matrix, then it is what ट्रू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है a प्लस बी, तभी अगर ऑर्डर सेम होगा तभी प्लस कर पाएंगे। तो इफ द टू मैट्रिसेस आर गिवन a एंड b आर ऑफ द सेम ऑर्डर और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, देन क्या होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, सिंपल। ठीक है,
इफ देयर इज एनी मैट्रिक्स ए एंड उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज देयर एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर के, तो क्या हो जाएगा, ये जो k है ना, इट दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 5 ये वाला मैट्रिक्स में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, द स्केलर इज 2, 2a कितना होगा, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 4 10 6 18 16 14 12 8 will multiply each and every element of the matrix with that scalar. So matrix is, if the matrix A is multiplied with a scalar k, तब उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, k को बाहर निकालो सिंस इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तब a का ट्रांसपोज, बात तो एक ही आएगा। ठीक है, एनी डाउट? फॉर द मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस है, जैसे कि मान लो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ए मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल है ए एंड बी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए और बी का ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, तब ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसके बारे में कोई एक मैट्रिक्स लो, ठीक है, जो ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसको आप लोग खुद से प्रूव करके देखो, तो होमवर्क में नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रूव किया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, एंड टेक और 2/2 ले लो एंड 2/1 ले लो, आप इसी का ले लो 1 2 3 4 और बी 4/4 इंटू 2, इसका ही कर लो। ठीक है, तो इसका रो जो है बी का अगर यहाँ पे ट्रांसपोज लिखेंगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस 4 इंटू 2, सॉरी 4 2, है ना, क्लियर है। बट इन केस ऑफ ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो इट विल बिकम 1 2 एंड इट विल बिकम 3 4 लाइक दिस। तो अब ए ट्रांसपोज करने के बाद फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, ट्राई टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आप खुद से इसको प्रूव करने का कोशिश करो, दिस वन, ठीक है, और प्रूफ करने के बाद मुझे बताना कि प्रूफ हुआ कि नहीं। ऑलराइट, मैं इसको हाईलाइट कर देता थोड़ा सा, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, क्लियर है। इफ देयर विल बी एनी डाउट यू प्लीज आस्क, एंड ये होमवर्क करके मुझे दिखाना। ऑलराइट, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड हम लोग पार्ट में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड एडजॉइंट के बाद हम लोग करेंगे ऑपरेशंस, वी विल टॉक अबाउट द इनवर्स। So this was the first lecture on the operations of matrices. All right, so I'll see you in the next class. If there is any doubt from the lecture, please drop a message in the WhatsApp, and if there is no doubt, also let me know how the video was, and definitely I know whatever I have taught you right now आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, and वो समझने के बाद you apply this knowledge into solving questions. All right, I'll see you in the next class. Till then, please take care, stay safe and study hard.